السلام علیکم، آداب، پرنام، جے ہند ساتھیوں، میں اعزاز بات۔ آج کا ہمارا جو نیا مدعا ہے مدد، سہایتا۔ مدد ایک ایسی مانوتا وکاس ہے جو ہر انسان کے لیے کرنا کافی زیادہ انوار ہے، اور مدد سے ہی انسان کا کلیان سمبھو ہے اور ہو رہا ہے۔ آج کا ہمارا جو نیا ٹاپک ہے مدد، سہایتا۔ آج میں مدد اور سہایتا کے مدعے پر آپ لوگوں کے بیچ اپنی وچاردھارا ڈالوں گا، اور مدد ہم لوگوں کو کرنا کتنی ضروری ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اپنی وچاردھارا بتاؤں گا۔ تو مدد کرنا کافی زیادہ انسانیت کے لیے خوشی کی بات ہے۔ انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے، مانوتا کو زندہ رکھنے کے لیے مدد کئی پرکار سے کیا جاتا ہے، ہو رہا ہے۔ مان لیجئے کہ میں شکشا گرہن کر رہا ہوں، اور میری شکشا میں بنا ٹیچر اور بنا شکشک کے میری شکشا ادھوری ہے، اور بنا کتاب کے۔ تو جب شکشا میں پڑھائی کرتا ہوں تو اس میں 3 چیز کی کافی زیادہ بھومکا رہتی ہے۔ پہلی تو کتاب کی بھومکا، دوسری لکھنے کی بھومکا، اور تیسری پڑھانے کی بھومکا۔ تو یہ 3 چیز مدد کے ہی ذریعے ہوتا ہے، اور یہ تینوں چیز جس نے بنایا ہے کافی زیادہ انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ شکشا سے انسانیت پیدا ہوتی ہے، اور شکشا سے انسان کا وکاس ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو نیا مدعا ہے مدد، تو آج ہم آپ لوگوں سے گزارش کرنے آئے ہیں اور نویدن کرنے آئے ہیں کہ آپ لوگ اپنے نزدیک میں اگر کسی طرح کے غریب اور شوشت اور آرتھک کمزور کوئی بھی ناگرک آپ لوگوں کے اگل بغل میں رہتے ہیں تو ان کی مدد کریں۔ ان کی مدد اس لیے کریں کہ آپ ان کی مدد کریے گا تو اللہ اور ایشور آپ کی مدد کرے گا۔ آپ انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے اور انسانیت کے وکاس کے لیے اگر مدد کریں گے تو ایشور آپ کے وکاس کے لیے مدد کریں گے، اور اللہ آپ کے وکاس کے لیے مدد کریں گے۔ تو آج کا ہمارا نیا جو ٹاپک ہے مدد، تو ہم سبھی کو مدد کرنی چاہیے۔ مدد کئی پرکار کی ہے، پیسے سے بھی مدد ہے، کامیابی سے بھی مدد ہے، صحیح راستے پر بھی لانا مدد ہے، اور نہ جانے کئی پرکار کی مدد ہے۔ تو آپ کے اندر جس طرح کا گن ہے اس طرح کا مدد آپ کر سکتے ہیں، آپ پر نربھر کرتا ہے، اور مدد کرنا کافی زیادہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کافی ضروری ہے۔ تو آج ہمارا جو نیا مدعا ہے مدد، آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ اور مدینہ شریف میں اسلام پھیلانے کی راہ میں نکلے تھے تو کافی زیادہ ان کو سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کافی زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر ان کی ہمت اور ان کا سوچ مانوتا کے وکاس کے لیے تھا، ان کے ادھیکار کے لیے تھا، اور مانوتا کو سمانتا کے لیے تھا، اور ان کی مدد کے لیے تھا۔ تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں نہیں تشریف لائے تھے تو سعودی عرب میں نہ جانے کتنی اتیاچار ہوتی تھی، کالے گورے کا وہاں بھید بھاؤ ہوا کرتا تھا، مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار ہوتا تھا، اور ننھی چھوٹی سی بچہ پیدا ہوتے ہی اسے اس کا گارجین دفنا دیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں اس طرح سے اندھیرا پھیل گیا تھا کہ وہاں کی انسانیت پوری طرح سے مر چکی تھی، کیونکہ وہاں پہ مدد نہیں تھی، وہاں پہ انسانیت نہیں تھی، وہاں پہ لوگوں کے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ تو اللہ اور ایشور نے اپنے میسج کو پھیلانے کے لیے اور انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے، انسانیت کو سمانتا کا ادھیکار دینے کے لیے اور انسانیت کے وکاس کے لیے انہوں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ اسلام میں لگ بھگ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں لگ بھگ، تو سبھی نے
मानवताओं के विकास के लिए, उनकी समानता के अधिकार के लिए, उनको हर शोषित व्यवस्थाओं से बचाने के लिए उनको ईश्वर और अल्लाह ने दुनिया में भेजा और अल्लाह का मैसेज दिया कि इस दुनिया में जितने रहने वाले इंसान हैं सभी समानता का सभी को अधिकार है, सभी के अंदर एक समान का खून है, किसी गोरे काले की फर्क नहीं है। और किसी भी इंसान को जब ईश्वर बनाता है तो वो ईश्वर का बनाया हुआ एक गिफ्ट होता है, अल्लाह का बनाया हुआ एक गिफ्ट होता है, मगर हम जैसे इंसान उस अल्लाह के बनाए हुए गिफ्ट पर सवाल करने लगते हैं कि यार ये काला है, इसका शकल ऐसा है, उसका शकल वैसा है। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को ख़त्म करने के लिए अल्लाह पाक ने 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में भेजे कि इंसान के अंदर जो शैतान घुसा हुआ है उसे ख़त्म किया जाए और सबको समानता, मानवता और सभी को एक समान अधिकार दिया जाए और सभी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। तो आज का हमारा जो मुद्दा है मदद, तो हमारे अल्लाह पाक ने जब नबी आखिरी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजे तो उन्होंने दुनिया में आते ही अंधेरे को ख़त्म करना शुरू किया और उनके इस अंधेरे को ख़त्म करने में उनके कई दोस्तों ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की, जैसे हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली साहब, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और न जाने कितने सहाबा कराम जिन्होंने अल्लाह के नबी के विचारों को फॉलो कर इंसानियत और मानवता को जिंदा किया। तो आज का हमारा जो नया मुद्दा है कि हम लोग अगर मदद करेंगे तो हमारे अंदर की बुराइयां ख़त्म हो जाएगी और हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे मदद के माध्यम से ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपके समाज में, अगर आपके अगल बगल, अगर आपके परिवार में, आपके दोस्त में कोई भी गलत रास्ता पे हो या किसी तरह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो या उनकी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो या उनका जीवन काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो या उनकी आर्थिक स्थिति में किसी तरह की तंगी हो, तो आप और हम मिलकर उनकी व्यवस्थाओं को मजबूत करें। उनकी शिक्षा को मुकम्मल कराने में आपके पास जो भी रकम है उससे कुछ मदद करके उनको भी कामयाबी का रास्ता दिखाएं। अगर आप कामयाब हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को कामयाब करें, अपने दोस्तों को कामयाब करें, अपने समाज के लोगों को कामयाब करें, अपने देश के नागरिकों को कामयाब करें, क्योंकि कामयाबी से ही इंसानियत जिंदा होती है और इंसान का विकास होता है। तो मदद आप कामयाबी के माध्यम से कर सकते हैं, किसी को रोजगार लगा सकते हैं या किसी को किसी तरह की व्यवस्थाओं में बुलंदी पहुंचा सकते हैं, किसी को आप प्रसिद्ध कर सकते हैं। अगर कोई गरीब है तो आप उसको आर्थिक सहायता कर उसे भी खुशहाली ज़िंदगी उनकी बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक था मदद, तो आप सभी लोग ज़रूर मदद करें। मदद कई प्रकार से है, कई तरीक़ा से है, आप ज़रूर करें। अगर आपके अगल बगल आपके दोस्त रिश्तेदार में कोई आर्थिक स्थिति में कमज़ोर है और उनको उनके खाने पीने में, रहने सहने में किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, तो आप उस अपनी रकम में से कुछ हिस्सा उनको भी दें। आप उनको अपना हिस्सा दीजिएगा तो अल्लाह और ईश्वर आपको हिस्सा देगा अपनी तरफ से। तो आप जितना नेकी हासिल करिएगा और जितना मदद करिएगा आपको अल्लाह उतना ही नवाजेगा और ईश्वर उतना ही नवाजेगा। तो आप किसी भी धर्म में अगर किसी तरह के नागरिक परेशान हैं आर्थिक तंगी से या नाकामयाबी के कारण वो ज़िंदगी में परेशान है या शिक्षा पाने में वो अधूरा है और शिक्षित होने की ख्वाहिश रखता है, तो ऐसे लोगों को ज़रूर आगे बढ़ाइए और इंसानियत को पैदा कीजिए और मानवता को पैदा करिए। और ये व्यवस्था आप मदद के माध्यम से कर सकते हैं। आप भूखे को रोटी खिलाइएगा तो आपको ईश्वर की तरफ से रोटी मिलेगा। अगर आप भूखे नंगे को कपड़ा पहनाइएगा तो अल्लाह पाक या ईश्वर आपको अपनी तरफ से इतनी नेमतें अता करेगा कि आप
बेशुमार नेमतों से माला माल हो जाएंगे। अब अल्लाह पाक आपको कपड़ा पहनाएगा। तो आप कोशिश करिए कि अगल बगल समाज में और देश में अगर किसी भी धर्म के लोग अगर गरीब है, शोषित है और आर्थिक तंगी के कारण वंचित है और शिक्षा पाने के योग्य है और शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, तो उसे आप और हम आगे बढ़ाएं ताकि उनका भी विकास हो, वो भी हमारी तरह खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे और अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुशहाल रखें। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक था मदद सहायता, ज़रूर मदद सहायता करें। अगर आपके पास पैसे आते हैं, ज़्यादा पैसे हैं, तो आप हफ्ते के दिन नाश्ता पैकेट बंद करके स्टेशन और आपके इलाके में जितने भी गरीब समाज रहते हैं या कहीं पे गरीब लोगों का बस्ती है, तो वहाँ पे आप जाकर पैसे के माध्यम से, नाश्ते के माध्यम से, खाने के माध्यम से उनकी सहायता करें। अगर आप उनकी सहायता करिएगा तो अल्लाह ईश्वर आपकी सहायता करेगा और आपकी ज़िंदगी में बरकत देगा, आपकी ज़िंदगी में हज़ारों नेमतें अता करेगा। तो कोशिश करिए अपने बुरे हालातों को, बुरे जिन लोगों के हालात जो गुजर रही है उन्हें बेहतर करने की आप लोग कोशिश करिए। आपका एक छोटा सा मत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गर्वपूर्ण रहेगा और सम्मानजनक रहेगा। आज का हमारा जो नया टॉपिक था मदद और सहायता, ज़रूर कीजिए। हमारे अल्लाह ने जिन नबियों को भेजा था हम लोगों की मदद के लिए, अब हम लोग का कर्तव्य है कि हम अपने लोगों की मदद करें और नबी और अल्लाह के बनाए हुए सिद्धांतों, विचारों और ईश्वर के बनाए हुए कर्मों को और उनके नियमों को ज़रूर फॉलो करें और इंसानियत को ज़िंदा करें, मानवता को ज़िंदा करें। जय हिंद, जय भारत।